Welcome all of you to class of condensed matter physics. In the previous lecture, we discussed BCC, FCC and simple cubic lattice and what is the arrangement of atoms, what's the interplanar spacing or separation between the lattice planes in all these cases. And we specially discussed 100 plane, 110 plane and 111 plane. Okay, because 100 which yz axis ਦੇ parallel ਹੁੰਦਾ plane, 110 which only z axis ਦੇ parallel ਹੁੰਦਾ and 111 which the plane makes intercept on all three, so ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ parallel ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. Okay, now let's discuss about cubic crystals, especially all sort of cubic crystal, और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ study ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਜੋ common cubic crystals ਨੇ and ਉਹਨਾਂ ਦਾ structure. So you just need to know what the structure looks like and you should know how to draw the structure. So first thing first is that a crystal system in which the unit cell is a cube is called cubic crystal system. ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਕਿ unit cell ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ smallest quantity, smallest entity ਹੁੰਦੀ ਹੈ which makes the entire crystal. ਹੁਣ ਇਸ unit cell ਦੀ shape matter ਕਰਦੀ ਹੈ. अगर एक क्यूब है तो यही क्यूब तुसी सारे थ्रू आउट द क्रिस्टल या जो भी तुहाडे कोल स्पेस अवेलेबल है तुसी ओहदे ते रिपीट करोगे एंड यू विल गेट अ क्रिस्टल बिकॉज क्यूब इटसेल्फ एक 3 डायमेंशनल फिगर है. सो अगर 3 डायमेंशनल फिगर नू तुसी रिपीट कर रहे हो सो ऑब्वियसली यू विल ऑब्टेन अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर एंड दैट वुड बी अ क्रिस्टल. ठीक है, सो ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ यूनिट सेल क्यूब है यानी हर जो अरेंजमेंट तुसी देख रहे हो हर पैटर्न लुक्स लाइक अ क्यूब, that is going to be a cubic crystal system. And then ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਮੇਜਰ ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਿੰਪਲ cubic crystal, face centered ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ cubic close packed ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, and body centered cubic crystal. So simple cubic crystal ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, this one you can see here. Simple ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ primitive ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, simple cubic lattice or primitive cubic lattice. So remember the names. सिंपल जब भी वर्ड आएगा दैट मीन्स सिर्फ कॉर्नर्स ते ही पॉइंट्स प्रेजेंट ने, और ये पॉइंट्स बेसिकली की ने लैटिस पॉइंट्स ते ही एटम्स असी प्लेस करते हैं. सो दैट मीन्स एटम सिर्फ कॉर्नर ते ही प्रेजेंट ने, दैट्स इट. सो यू नो दैट अ क्यूब हैज़ 4 कॉर्नर. सो क्यूब ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ corners ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ faces ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ edges ਹੁੰਦੀ ਆ, you should know this thing because that would help. So you can see here we have 8 corner, it means 8 atoms are there. Okay, so a unit cell has atoms only at the corners of the cube. So there are 8 atoms lying at the corner. When 8 atoms corner te ne, और ਹੁਣ ਇਹ जो एक particular lattice है ये हर जगह repeat हो रहा है हर direction ਵਿੱਚ. ਇਸ ਦੇ ਲੈਫਟ ਤੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਰਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਟੌਪ ਤੇ ਬੋਟਮ ਤੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਬੈਕ ਤੇ ਡਾਇਗਨਲੀ ਵੀ ਅਟੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ. ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਦਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ 8 ਹੋਰ ਯੂਨਿਟ ਸੈਲਸ ਅਟੈਚਡ ਹੋਣਗੇ. ਆਲਰਾਈਟ, ਹਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਟੈਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਯੂਨਿਟ ਸੈਲ. ਸੋ ਜੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਐਟਮ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਐਟਮ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, सो ईच एटम अपना 1/8 ही कंट्रीब्यूट कर रहा है. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एटम शेयर हो रहा है बाकी जो भी यूनिट सेल्स है उन्हां नाल. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट यू टू सी दिस फिगर. सो अल्टीमेटली जो असी समझण लई ड्रॉ करते हैं तो असी एक तरह का क्यूब बनाने हैं. ठीक है, एंड वी से कि ये साडे लैटिस पॉइंट्स ने, के ऑल दीज लैटिस पॉइंट्स जिथे कि एटम्स ने. बट रियलिटी विच इस तरह का इदा कोई बॉक्स नहीं नज़र आता, रियलिटी ये है. सो अल्टीमेटली दिस इज़ हाउ इट लुक्स. इस सिंपल क्यूबिक लैटिस विच यू कैन सी तुहाडे कोल 8 एटम्स ने. ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8.
बट ये जॉइन किस तरह है तुसी देख सकते हो कि ये बिल्कुल क्यूब ही लग रहा। अगर इन्हां दे सेंटर्स ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ that will look like a cube। ठीक, सो ऐसे करके इसਨੂੰ सिंपल क्यूबिक बोलते हैं। ਇਹ है रियल ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਦਿਖਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਇਟ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਦਿਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ੇਪ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜੋੜ ਦੋਗੇ, ओके, सो यू विल ऑब्टेन अ क्यूब। ये देखो ये बन गया पूरा क्यूब। ऑल राइट, सो दिस इज सिंपल क्यूबिक लैटिस। ये है रियल वन जिदा सानू एक्चुअल च दिखते ने। हुण बॉडी सेंटर्ड विच की है, 8 एटम्स ऑलरेडी कॉर्नर्स ते ने, एक एक्स्ट्रा है सेंटर विच। सो हियर यू कैन सी देयर इज जस्ट वन मोर। सो वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक पीछे भी है 9। ठीक है, ये जो तुहानू दिख रहा है वो हाइड हो गया। प्रॉब्लम यही है कि असी 3D फिगर्स नू प्रॉपरली 2D ते नहीं देख सकते, सो दैट्स वाई उस चीज़ नू थोड़ा समझना डिफिकल्ट हो जाता है। एंड फेस सेंटर्ड विच वट डू वी हैव, 8 कॉर्नर्स ते तो है ही है, बाकी फेसिस ते ने, यानी कि तुसी देखो दिस वन इज फॉर टॉप, टॉप फेस दे सेंटर विच है, ए है बॉटम दे सेंटर विच, देन लैफ्ट वाली साइड दे सेंटर विच, राइट वाली साइड दे सेंटर विच, फ्रंट वाली साइड दे सेंटर विच एंड बैक वाली साइड दे सेंटर विच। ओके, सो अल्टीमेटली वो देखने च लग रहा है कि वाई 3 आर देयर, बट एक्चुअली ये सिर्फ हर एक फेस दे सेंटर विच है। इत्थे हुण तुहानू नहीं दिखेगा बिकॉज जिहड़ा बैक साइड ते एक एटम प्लेस्ड है, जिहड़ा ये वाला कॉर्नर ते एटम प्लेस है, वो तुहानू इस फिगर विच विजिबल नहीं हो रहा बिकॉज वो बैक ते चला गया। ओके, सो दीज आर द थिंग्स। नाउ हुण एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है, सो पूरे 3 डायमेंशनल विच इदां दा बहुत सारे अरेंजमेंट होणगे। हुण जिद्दां अगर असी एक्चुअल च देखिए सिंपल क्यूबिक लैटिस, तो एक तुसी पर्टिकुलर देख लिया एक अरेंजमेंट विच इज़ लुकिंग लाइक ए क्यूब। सो सानू ये पता चल गया कि ओके सारे ही क्यूब की तरह ही ने। हुण एक्चुअल अरेंजमेंट ये है, तुहाडे कोल कोई भी क्रिस्टल है, एटम्स इस तरह अरेंज ने। हुण अगर तुसी किसी एक पर्टिकुलर एटम नू चूज कर लो, सपोज दिस इज योर एटम, now if we pick this particular atom, now you see एक किन्ना नाल join हो रहा है, how many are there, 1 2 3 4 5 6, एक इस दे बॉटम ते भी होएगा which we cannot see, maybe this one is there, और एक इस दे टॉप ते भी होएगा। कोई इस तरह की रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं कि इस दे टॉप ते नहीं हो सकता। इट्स अ क्रिस्टल, 3 डायमेंशनल क्रिस्टल, सो राइट लेफ्ट टॉप बॉटम फ्रंट बैक सारे ते एटम्स का अरेंजमेंट होएगा। सो ऑब्वियसली एक इस दे टॉप ते होएगा 8। सो और ये एक पर्टिकुलर जो असी यूनिट सैल बोल रहे हैं, जो क्यूबिक यूनिट सैल है, उसका भी पार्ट है। सो बिकॉज ये एक्चुअली 8 एक्सट्रा नाल ज्वाइन हो रहा है, सो एक पर्टिकुलर यूनिट सैल दे विच ये अपना 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन ही देंदा है। ओके, बिकॉज ये एक इस पर्टिकुलर यूनिट सैल का भी पार्ट बन रहा है, ये उस पर्टिकुलर यूनिट सैल का भी पार्ट बन रहा है जो 1 नाल बन रहा है। जो 2 बना रहा है यूनिट सैल उसका भी ये पार्ट है, जो 3 बना रहा है उसका भी ये पार्ट है, 4 5 6 जो इस दे बॉटम ते है 7th उसका भी ये पार्ट है जो यूनिट सैल वो बना रहा है। एंड जो इस दे टॉप ते होएगा वो वाला आइटम जो यूनिट सैल बना रहा है उसका भी पार्ट है। सो इट इज़ पार्ट ऑफ एक्चुअली 8 टाइप ऑफ अदर यूनिट सेल्स, एंड दैट्स वाई वी से कि एक पर्टिकुलर यूनिट सेल विच एक पर्टिकुलर एटम सिर्फ अपना 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन ही देता है। नाउ 1/8 ही क्यों, यू नो दिस नाउ, ठीक है, बिकॉज इट इज ज्वाइनिंग विद 8 अदर्स, और 8 अदर एटम्स दे जो यूनिट सेल है ये उसका पार्ट है। इट इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दोज यूनिट सेल ऑल्सो। तो अगर असी यानी एक एटम एट अ टाइम 8 यूनिट सेल्स का पार्ट बन रहा है। ओके, सो बहुत ही सिंपल मैथ्स है कि 8 यूनिट सेल्स द पार्ट बन रहा है 1 एटम। सो 1 यूनिट सेल द पार्ट कितना बनेगा,
that will be 1/8th atom, 1/8 atom. सो एक यूनिट सैल की असी गल करिए, सो एक पर्टिकुलर एटम सिर्फ अपना 1/8 ही कंट्रीब्यूट कर रहा है. Understood? And we have various examples of this type of crystal structure. For example, polonium or cesium chloride, they all form this kind of simple cubic crystal structure. ठीक. Then comes the face-centered cubic, or also known as cubic close packed crystal. So you have to remember all the names. ਹੁਣ face center which की है, obviously we have atoms at the corner, but we also have atom at the center of each of the faces. ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਐਟਮ ਹੈ, say simple cubic which की सी, it was actually a part of 8 unit cells, but because ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ we have 3 more atoms involved, so ਇਸ ਕਰਕੇ now each atom is in contact with 12 atoms. Okay, so ਹੁਣ एक atom 12 atoms ਦੇ contact ਵਿੱਚ है. And here the examples are copper, aluminium. So ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ we find face-centered cubic crystal structure. So ਹੁਣ let's try to understand कि already simple cubic lattice ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ atom 8 ਹੋਰ atoms ਨਾਲ ਤਾਂ join ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ. And it is contributing in their unit cells. So 8 unit cells ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ contribute ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸਦਾ ਇੱਕ portion ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ involved ਹੈ. ਹੁਣ FCC ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਹਰ ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ. ਸੋ ਅਗਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਸਪੋਜ਼ ਆਈ ਪਿਕ this particular, this is my atom. Okay, so now ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜੋ ਕਾਰਨਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜੁਆਇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਫਿਗਰ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਐਟਮ ਵਿੱਚ कौन कौन ज्वाइन हो रहा है, 1 2 3 4. ठीक है, अगर ये फेस सेंटर्ड भी है, सपोज इट इज अ फेस सेंटर्ड, चाहे मैं फेस सेंटर्ड वाला एटम पिक करा चाहे कॉर्नर वाला पिक करा, तो सिचुएशन इज सेम फॉर एवरीवन. जस्ट फॉर ईज मैं ए वाला पिक कर लिया. हुण तुसी देख सकते हो दैट ये 1 2 3 4 ਤਾਂ ਇਹਦੇ फ्रंट तो जो सानू विजिबल है वो अटैच हो रहे हैं. सिमिलरली बैक ते भी तो है ने एटम्स जो ये अटैच हो रहे हैं. सो 1 2 3 4 एंड बैक ते हो गए 5 6 7 8. ठीक है, यानी इस बैक साइड ते सपोज ए हो गया 5 6. ठीक है, एक केस सानू दिख रहा है 7 एंड दिस इज 8. ठीक, नाउ वी नो कि हुन हर एक सेंटर विच हर एक एटम फेस दे सेंटर विच भी आ चुके हैं. ऑब्वियसली अगर एक क्यूबिक सैल है तो ये फेसिस विच एक एक एटम होर एक्सट्रा आ गया. सो हुण इस दे नाल होर कौन ज्वाइन हो रहा है, कौन टच कर रहा है, यू कैन सी दैट एक तो होएगा इसकी बैक साइड ते, समवन बिहाइंड इट 9 नंबर दे देनी है. एक होएगा इसकी फ्रंट साइड ते, जो इस तो एक तो मैं 9 लिख दिता बैक साइड ते, और एक फ्रंट ते भी तो इस दे नाल अटैच होएगा ना कोई जो ज्वाइन करेगा इसनों 10. एंड देन एक होएगा इस दे लेफ्ट साइड ते, एक होएगा इस दे राइट साइड ते. सो इस तरह 12 इस दे नाल ज्वाइन हो जाते हैं. ऑब्वियसली अगर तुहाडे कोल एक मॉडल होए दैन इट्स डेफिनेटली ईजी, बिकॉज स्टिल बहुत कोशिश है दैट ये फिगर नू 3D 2D विच इस फिगर नू बना के 3D कॉन्सैप्ट नू समझण दी, बट स्टिल द थिंग इज यू हैव टू जस्ट आइदर ड्रॉ द मॉडल और विजुअलाइज इट कि किस तरह होना चाहिए. बट अगर मेरे को एक 3D मॉडल हुंदा दैन डेफिनेटली थिंग्स वुड हैव बीन मच ईजियर टू एक्सप्लेन टू यू, बिकॉज ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ एक्चुअल च देख सकते हैं कि किस तरह का अटैचमेंट्स है. सो फॉर नाउ I would look for कि कोई मैनू एनिमेटेड वीडियो मिले where I can show this thing, where it's shown कि किस तरह atoms join होंदे हैं in simple cubic या face centered या body centered. So then I'll definitely share it with you. Okay, I will share it with you. So हुण ये सानू almost थोड़ा clear हो गया. सिर्फ सानू यही नोट करना है कि हर केस विच
एक particular atom ਕਿੰਨਿਆਂ ਨਾਲ join ਹੋ ਰਿਹਾ। So simple cubic which we had 8, face centered which we have 12, and then comes body centered। So body centered which ਕੀ ਹੈ, obviously 8 at the atom and only 1 at the center। So ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ examples ਨੇ ਉਹ ਹੈ sodium and tungsten, where we see this kind of arrangement। So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ that ਇੱਕ atom already 8 ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, plus ਇੱਕ body centered atom ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ touch ਹੋ ਰਿਹਾ। Okay, so ਇੱਕ particular atom ਦੇ case ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸਦੇ ਨਾਲ join ਹੋ ਰਿਹਾ। So body centered the case which you know 8 ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। So ਅਗਰ ਇੱਕ particular ਅਸੀਂ atom pick ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ this one, so ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 1 2 3 ਠੀਕ ਹੈ, then 4 ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਇਸ upper side ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਉਹ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ front side ਤੇ connected ਨੇ ਉਹ, ਯਾਨੀ ਕਿ 8 ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, plus ਇੱਕ ਇਹ body centered atom ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ join ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। So ਇਹ 9 ਨਾਲ join ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Characteristics, volume of unit cell। So cubic unit cell है, volume कितना ਆਪਾਂ निकालते हैं, length into breadth into height। We know in cube all three are equal, so the volume would be a cube if we say a is equal to b is equal to c। And then number of atom per unit cell। So एक particular unit cell ਵਿੱਚ किन्ने atoms ने उसਨੂੰ find ਕਰਨ ਲਈ we have a formula। So here you can see that an atom in unit cell is usually shared by other unit cells। ये तो clear हो गया। For example, a corner atom of cubic cell is shared by 8 unit cells। So corner वाला तो हमेशा 8 unit cells नाल share होता है। So corner atom हमेशा अपना 1/8 contribute करेगा एक particular unit cell ਵਿੱਚ। क्यों? क्योंकि वो in total 8 unit cells ਦਾ part है। So वही मैथ्स कि अगर वो 8 यूनिट सेल्स दा पार्ट है एक एटम, सो 1 यूनिट सेल दा पार्ट कितना होया उसदा 1/8, उसदा सिर्फ 1/8 ही एक पर्टिकुलर यूनिट सेल दा पोर्शन है। सिमिलरली जो फेस सेंटर्ड एटम है दैट कंट्रीब्यूट्स हाफ ऑफ इटसेल्फ, whereas the body centered atom belongs completely to given unit cell। ਹੁਣ जो फेस सेंटर्ड एटम है वो हाफ ऑफ इटसेल्फ ही कंट्रीब्यूट करता है। वाई? बिकॉज उसका जो भी पोर्शन एक यूनिट सैल नाल अटैच हो रहा है, क्योंकि वो साइड ते है। ठीक है, अगर असी इसकी गल करिए, इस दे नाल नैक्सट जो यूनिट सैल बनेगा तो इसका मतलब ये फेस सेंटर्ड जो एटम है ये अपना कुछ पोर्शन तो इस यूनिट सैल नूं दे रहा है तो कुछ पोर्शन दूजे नूं। लेट मी शो यू। हुण सपोज ये तुहाडे कोल क्यूबिक लैटिस है। ठीक है, हुण इस तरह जो असी 2 कंसीडर किते हैं बट बहुत सारे यूनिट सैल्स ने हर डायरैक्शन विच अटैच ने। हुण अगर इस पर्टिकुलर साइड नूं असी पिक करिए और इस फेस सेंटर्ड एटम इत्थे प्रेजेंट है, मैं कॉर्नर वाले एटम्स नहीं बनाए बिकॉज फिर वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर देंगे। और ओके, लेट मी मेक द कॉर्नर एटम ऑल्सो। सो हुण मैं इस फेस सेंटर्ड एटम नूं कंसीडर कर रही हां, दिस ग्रीन वन, बाकी दे मैं नहीं बनाए। हुण एक ग्रीन वन जो है फेस सेंटर्ड एटम, उसनों एक तो ए वाला यूनिट सेल शेयर कर रहा है। ओके, एक ए वाला शेयर कर रहा है, सो इसनों मैं सिर्फ इन्ना ही कलर कर दिया, और एक इसनों ये नाल वाला शेयर कर रहा है। हुण ए वाली जो साइड है इसनों होर कोई भी यूनिट सेल शेयर नहीं करेगा, यू नो इट बाय योरसेल्फ। हुण अगर यूनिट सेल है तो वो इस क्यूबिक लैटिस दे बैक साइड ते होणगे, फ्रंट साइड ते होणगे, इस दे राइट इस दे लैफ्ट ते होणगे, इन्हां दे फ्रंट च होणगे, इन्हां दे बैक च होणगे, इन्हां दे टॉप ते होणगे, इन्हां दे बॉटम ते होणगे। सो अगर असी इत्थे टॉप ते भी बना दईए, नाउ आई हैव ड्रॉन यूनिट सेल्स ऑन ऑल द साइड्स। सिर्फ मैं फ्रंट और बैक वाले नहीं ड्रॉ कर सकती। ठीक है, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी, बट राइट ते लैफ्ट ते टॉप ते बॉटम ते सैल्स असी ड्रॉ कर ले, और सिमिलरली फ्रंट ते भी होणगे एंड बैक ते भी होणगे। बट अगर असी इस पर्टिकुलर साइड नूं ही देखिए जिहदे विच ये फेस सेंटर्ड एटम प्रेजेंट है, इस पर्टिकुलर साइड नूं
कौन शेयर कर रहा है? कि ये लेफ्ट वाला कर रहा है? नो। राइट वाला कर रहा है? नो। टॉप वाला कर रहा है इस एटम ਨੂੰ? कि ये टच कर रहे हैं इस एटम ਨੂੰ? नो, दे आर नॉट टचिंग। बॉटम वाले टच कर रहे हैं इस एटम ਨੂੰ? नो, दे आर नॉट टचिंग। ठीक है, सो इस एटम ਨੂੰ बेसिकली सिर्फ दो ही यूनिट सेल कर रहे हैं, एक दिस वन एंड अनदर वन इज दिस। सो ये अपना हाफ कंट्रीब्यूट कर रहा है इस 1 नंबर यूनिट सेल ਨੂੰ एंड हाफ कंट्रीब्यूट कर रहा है इस 2 नंबर यूनिट सेल ਨੂੰ। सो इस करके जो ਤੁਹਾਡਾ फेस सेंटर्ड एटम ਹੁੰਦਾ है ਉਹ अपना हाफ एक पर्टिकुलर यूनिट सेल ਨੂੰ कंट्रीब्यूट करता है। क्यों? क्योंकि इट इज शेयर्ड बाय 2 यूनिट सेल। सो 2 यूनिट सेल्स शेयर करते हैं 1 एटम। सो ऑब्वियसली 1 यूनिट सेल शेयर करेगा हाफ ऑफ द एटम। ठीक है, अंडरस्टूड? जस्ट ट्राई टू विजुअलाइज इट योरसेल्फ। सिमिलरली हुण अगर असी बॉडी सेंटर्ड की गल करिए, सो इफ वी टॉक अबाउट बॉडी सेंटर्ड, सो बॉडी सेंटर्ड की है वो एक पर्टिकुलर यूनिट सैल के बिल्कुल सेंटर विच है। आई नो हुण इत्थे भी इस पर्टिकुलर यूनिट सैल, ठीक है, अगर ये पूरा आप यूनिट सैल देखिए, सो इसके राइट साइड ते भी मैं एक यूनिट सैल ड्रॉ किया है, लैफ्ट साइड ते भी यूनिट सैल ड्रॉ किया है, टॉप ते भी किया है, फ्रंट बॉटम ते भी किया है। ऑब्वियसली फ्रंट और बैक वाला आई कैन नॉट शो, बट इमेजिन कि वो भी है नहीं। बट हुण जो ये बॉडी सेंटर्ड एटम है ये सिर्फ और सिर्फ इस यूनिट सैल के बिल्कुल सेंटर विच है, तो इसनों होर कोई भी यूनिट सैल टच नहीं कर रहा, ये किसी होर यूनिट सैल का पार्ट बन ही नहीं रहा, ना इसका बन रहा, ना इसका बन रहा, ना इसका बन रहा, ना इसका बन रहा, ना ही फ्रंट और बैक वालियां दा बन रहा। सो दैट मीनस कि एक बॉडी सेंटर्ड एटम जो है वो अपना फुल्ली कंट्रीब्यूट करता है एक पर्टिकुलर यूनिट सैल नूं ही जिस दे सेंटर विच इट इज प्रेजेंट। ओके, सो दैट्स वाई वट डू वी हैव कि कॉर्नर वाले 8 नाल अपनी शेयरिंग करते हैं, फेस सेंटर्ड वाले 2 नाल अपने आप नूं शेयर करते हैं, बट बॉडी सेंटर्ड कंप्लीटली बिलोंग करता है एक पर्टिकुलर यूनिट सैल नूं। सो हुण NC है नंबर ऑफ कॉर्नर एटम, NF इज नंबर ऑफ फेस सेंटर्ड एटम एंड NB इज नंबर ऑफ बॉडी सेंटर्ड एटम। सो अगर असी फाइंड करना है कि एक पर्टिकुलर यूनिट सैल विच किन्ने एटम्स ने, सो दिस इज द फॉर्मूला NC/8 प्लस NF/2 प्लस NB, क्योंकि कॉर्नर हमेशा 8 नाल शेयर होंगे, फेस वाले सिर्फ 2 यूनिट सैल नाल ही शेयर करते हैं अपने आप नूं, और जो बॉडी सेंटर्ड होंदा है वो एक पर्टिकुलर यूनिट सैल विच ही होंदा है, वो अपने आप नूं किसी होर नाल शेयर नहीं करता। सो ये पैटर्न है। हुण इसनूं यूज करके, इस फॉर्मूले नूं यूज करके वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ एटम इन एनी यूनिट सैल। सो अगर तो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल है, सो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल विच की है, ना फेस होंदा ना बॉडी, ओनली हैव कॉर्नर एटम। सो सॉल्व करके आंसर आ गया 1, यानी कि एक पर्टिकुलर अगर ਤੁਹਾਡਾ क्यूबिक क्रिस्टल है तो उसके यूनिट सैल विच देयर इज ओनली 1 एटम। सो देयर इज ओनली 1 एटम पर यूनिट सैल। अगेन तुसी कहोगे कि क्यों असी तो एक यूनिट सैल दे 8 कॉर्नर्स ने तो असी 8 एटम्स कहना चाहिए सानू, बट द थिंग इज कि असी इत्थे देख रहे हैं कंप्लीटली बिलोंग, कि वो अपना कितना परसेंट बिलोंग करता है या अपना कितना परसेंट शेयर देंदा है एक पर्टिकुलर यूनिट सैल नूं। दिस इज वट वी मीन बाय जब असी फाइंड करते हैं हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 1 यूनिट सैल। 1 यूनिट सैल का मतलब यह है कि एक यूनिट सैल की ही गल हो रही है भी एक पर्टिकुलर नूं वो अपना कितना शेयर दे रहा है, कि वो कंप्लीटली बिलोंग कर रहा है उसके नाल, या वो अपना कुछ पोर्शन दे रहा है, हाफ ऑफ द दे रहा है, या 1/4 दे रहा है, या 1/8 दे रहा है, ये आपां देखना है। हुण एज यू ऑल नो कि जो कॉर्नर ते एटम बैठा है वो बाकी दे 8 यूनिट सैल्स नूं भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है ना। तो 8 यूनिट सैल नूं कंट्रीब्यूट कर रहा है तो इट मीनस एक यूनिट सैल नूं अपना 1/8 ही कर सकता कंट्रीब्यूट। सो देर इज जस्ट 1 एटम पर यूनिट सैल। बॉडी सेंटर्ड विच की है, वी हैव 8 कॉर्नर एंड 1 बॉडी सेंटर्ड एटम। सो इत्थे आ गया 2, यानी कि एक BCC सैल विच देयर आर 2 एटम्स।
प्रॉपरली अगर देखा जाए तो 2 एटम्स ने, यानी एक तो पूरा पूरा बॉडी सेंटर्ड आ गया, ओके, एक तो पूरा प्रॉपर तुहाडा बॉडी सेंटर्ड एटम आ गया जो कि सेंटर ते है ते वो किसी होर नाल अपने आप नू शेयर नहीं कर रहा, बट और एक असी कंसीडर करते हैं जो कॉर्नर्स ते ने। सो ये जिहड़े कॉर्नर्स ते प्रेजेंट ने, ठीक है, एक एटम अपना 1/8 दे रहा है तो ये कॉर्नर ते 8 एटम्स प्रेजेंट ने, ठीक है। सो 8 इंटू 1/8, दिस इज हाउ वी फाइंड। अगर तुसी उदा भी समझना है सो यू कैन सी कि 8 एटम्स प्रेजेंट ने कॉर्नर्स ते, ठीक, फाइन, बट कंट्रीब्यूशन कितना है, हर एक एटम का कंट्रीब्यूशन है 1/8। सो एक एटम का कंट्रीब्यूशन एक पर्टिकुलर यूनिट सेल ली है 1/8 एंड देयर आर टोटल ऑफ 8 एटम्स, सो इट मीन्स पर यूनिट सेल हो गया ओनली 1 एटम। सो ये भी एक तो यही आ गया सिंपल क्यूबिक वाला एटम 1 प्लस 1 एटम हो गया बॉडी सेंटर्ड, क्योंकि वो प्रॉपरली एक पर्टिकुलर यूनिट सेल दे विच ही है, सो बन गए 2। सिमिलरली जब फेस सेंटर्ड की गल करिए तो वी हैव 8 कॉर्नर्स एंड 6 फेसिस, ठीक है। सो हुण 8/8 प्लस 6/2 एंड 4। सो देर आर 2 वेज, या तो तुसी की करो पहला देखो कि एक एटम की कंट्रीब्यूशन कितनी है, ठीक है। 2 वेज ने जिस दे नाल तुसी ये फाइंड कर सकते हो कि हाउ मेनी एटम्स आर देयर। एक तो यह है कि तुसी पहला तो देखोगे कि ओके किन्ने प्रेजेंट ने, तुसी देख लिया 8, बट फिर तुसी ये देखना पड़ेगा कि एक एटम जिहड़ा है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, कि होर किन्नियां नाल अटैच है, तो वो सीधा आ गया 1/8। तो तुसी कहोगे ओके 8 इंटू 1/8 1 एटम। हुण ये पोर्शन है, ये नहीं कि एक प्रॉपर एटम 1 इसनू बिलोंग कर रहा, नो, इसका भी 1/8, इसका भी थोड़ा जा 1/8, इसका भी 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 एंड 1/8, इस सारिया का 8 एटम्स का 1/8 1/8 1/8 कंट्रीब्यूशन है जो कि मिलके बना रहा है 1 एटम। सो ये भी तुहानू क्लीयर होना चाहिए। जबकि बॉडी सेंटर विच क्या है कि ये पूरा का पूरा ही कंट्रीब्यूट कर रहा, बाकी अपना 1/8 1/8 दे रहे ने। सो इस करके बाकियां दा तो वही 8 इंटू 1/8 प्लस एक ये पूरा प्रॉपर ये प्रेजेंट है, सो वी गेट 2। सो एक वे है जस्ट बाय सीइंग, बाय विजुअलाइजिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। दूजा की है कि यू जस्ट फॉलो दिस पर्टिकुलर रूल। ये रूल हमेशा ही दसदा है कि कॉर्नर वाले एटम हमेशा अपना 1/8 ही देंगे। सो डोंट थिंक अबाउट कि है या कि नहीं, कितना शेयर आ रहा है कितना नहीं, नो नीड टू थिंक। ये मोर ईजी है, ये साड़ी कन्वीनियंस लिए ही फॉर्मूला दिता गया है। और उन्होंने कहा कि फेस सेंटर्ड जो है वो हमेशा अपना हाफ कंट्रीब्यूट करेगा एक नू, और बॉडी वाला फुल्ली कंट्रीब्यूट करेगा, फुल्ली बिलोंग करेगा एक नू। सो इफ यू नो दिस तो फिर की करना है, बस तुसी फिगर देखनी है, फिगर के अकॉर्डिंग तुसी काउंट करना है। हुण तुहानू पता है कि कोई भी फिगर अगर फेस सेंटर्ड पिक करिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तक कॉर्नर एटम्स ने, और फेसिस क्यूब दे 6 ने। तो अगर तुहानू क्यूब बारे पूरी नॉलेज होएगी तां ही तुसी दस सकते हो हाउ मेनी कॉर्नर एटम्स आर देयर, हाउ मेनी फेस सेंटर्ड एटम्स आर देयर, ठीक है। सो तुहानू ये शेप्स दा पूरी नॉलेज होनी चाहिए है, हर एक शेप दी, जो भी आप ट्रायगनल रोम्बोहेड्रल सारे पढ़े ने, वो सारी शेप्स बारे तुहानू पूरी नॉलेज होनी चाहिए, वो स्ट्रक्चर तुहानू अच्छी तरह आना चाहिए। सो इफ यू नो दिस देन यू कैन सिंपली सब्सटीट्यूट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर, ठीक है। सो हेयर वी गेट 4। सो FCC विच देर आर 4 एटम पर यूनिट सेल, सिर्फ एक यूनिट सेल विच 4 ने, और वो ये नहीं कि टोटल 4, कुछ कुछ पोर्शन ज्वाइन हो के 4 बनाता है। कॉर्नर्स वाले का तो एक ही बनिया, बाकी जो फेस वाले ने वो 6 ने, बट क्योंकि वो अपना हाफ ही दे रहे ने एक पर्टिकुलर नू, सो इस करके 3 बन गया। 6 का हाफ 3 हुंदा है, सो 3 उस तो आया प्लस जो
1/8 करके जो 1 आ रहा सी, so that gives us 4. Now comes coordination number. So it is defined as the number of nearest neighboring atoms that surround each atom in the lattice. Okay, so ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਐਟਮਸ ਆਰ देयर ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਐਟਮ ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਦ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਐਟਮਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਦ ਅਸੀਂ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਤਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅਗਰ ਇਹ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਐਟਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਨੇਬਰਸ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। सो जो टच करेगा दैट विल बिकम इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर और दैट विल बी इट्स नियरेस्ट नेबर। अगर स्पेस आ गई विच तद वो नेबर नहीं होंदा। ओके, सो हियर इट टेल्स अस कि सिंपल क्यूबिक विच जो ईच कॉर्नर एटम है उसके 6 नियरेस्ट नेबर्स होंगे। एक कॉर्नर एटम 8 यूनिट सैल का तो पार्ट होंदा है, बट जो उसके नीयरेस्ट नेबर ने जो एटम उसमें एक्चुअली टच करेंगे वो सिर्फ 6 होंगे। ओके, सो सिंपल क्यूबिक का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है दैट इज 6। सिमिलरली एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है और बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। सो बीसीसी विच जिद्दां हुण तुसीं देखो ये पर्टिकुलर एटम जिहड़ा है वो सेंटर विच प्रेजेंट है। सो इस दे नाल ये भी कनैक्ट हो रहा, ये भी कनैक्ट हो रहा, ये भी ज्वाइन करेगा, ये भी ज्वाइन करेगा, ये सारे इसनू ज्वाइन करेंगे सेंटर वाले नू। सो इस करके इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 8। जिहड़ा कॉर्नर ते बैठा है हुण तुसीं पहलां तां देखोगे यूनिट सैल, बट द थिंग इज ये जो लाइन्स असी ड्रॉ करते हैं ये भी असी देखना है कि एजिस जो एजिस इस तो निकल रही ने ना, जिस एटम्स नू ए इस पर्टिकुलर दी एज ज्वाइन हो रही है सिर्फ वही एटम इस दे नियरेस्ट नेबर ने। सो अगर हम इसकी गल करिए तो एक तो ए है जो डायरैक्ट इस तो एज निकल रही है ज्वाइन कर रही है, एक ए एज निकल रही है, एक ए निकल रही है, एक ए, 4 तो हो गए। हुण देखो जब इस दे उत्ते भी तो बनेगा एक क्यूब, ठीक। सो यानी कि जो उत्ते एक एटम प्रेजेंट होएगा ये उस दे नाल भी इसकी डायरैक्ट एज मैच होएगी। ओके, इसी तरह एक होर अगे फ्रंट ते बनेगा उस दे नाल भी इसकी एज, यानी कि जो इसके फ्रंट ते होएगा, ये तो टॉप ते बन गया ना, जो इसके फ्रंट ते भी एक यूनिट सेल बनेगा उस दे नाल भी इसकी एक एज ज्वाइन होएगी। यानी कि इफ आई हैव टू ड्रॉ, सो अगर तुसी देखो तो कि इसके फ्रंट ते भी मैं बनाया है, आई हैव ट्राइड मेकिंग इन फ्रंट ऑफ इट। सो उस दे नाल भी देखो इसकी एक एज ज्वाइन होएगी। सो जिस दे नाल इमीडिएट इसकी एज ज्वाइन होंदी है एक इस दे टॉप ते बनेगा, ठीक है, उस दे नाल जिस दे नाल इसकी एजिज निकल रही ने, जिन्नी एजिज निकल रही ने और वो जिथे जिथे तुसी पॉइंट बना रहे हो वो इसके नियरेस्ट नेबर ने, बाकी नहीं। तो असी कहने कि रियलिटी विच की होएगा ये उन्नियां नाल एक्चुअली च ज्वाइन होएगा, एक्चुअली च टच करेगा। सो इत्थे इहदी एजिस कितनियां निकलियां 1 2 3 4 5 एंड 6। सो 6 नाल इहदी इमीडिएट कनैक्शन होएगा, इमीडिएट इस दे नेबर्स ने। सो दैट्स वाई वी से कि हुण इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है। बॉडी सेंटर्ड विच पता है वो सेंटर च प्रेजेंट है, सो ऑलरेडी सारिया नाल कनैक्टेड है, सो दैट इज 8। और फेस सेंटर्ड विच भी अगेन यू हैव टू टेक केयर कि पहला तो उस पर्टिकुलर दे इस एटम की भी एजिस ते दूजे एटम की भी एजिस, ओके, एंड फिर जिहड़े होर फेसिस ते प्रेजेंट ने उन्हां नाल भी। सो द थिंग इज कि यू हैव टू रिमेंबर असी कुछ पर्टिकुलर लिमिट तक तो समझ सकते हैं, बट अगेन फिगर्स आर कन्फ्यूजिंग बिकॉज असी 3D नू 2D ते बनाया हुआ, बट स्टिल जस्ट ट्राई टू विजुअलाइज, दैट वुड हेल्प यू। एंड ज़्यादा कोई कॉम्प्लीकेटेड नहीं है, कुछ बहुत सारे नंबर्स नहीं तुसी याद रखने, बस तुसी सिंपल क्यूबिक बेस सेंटर्ड सॉरी बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड बारे याद रखना है। एक तो हाउ मैनी एटम्स आर देयर इन ए पर्टिकुलर यूनिट सैल, ते दूजा
कि ਉਹਨਾਂ ਦਾ coordination number ਕੀ ਹੈ। Then comes the atomic radius. So if the atom are considered as hard spheres, so actually ਚ ਤਾਂ ਉਹ hard spheres ਨੇ, ठीक है। The atomic radius is defined as half the distance between two nearest neighboring atom. So ਦੋ nearest neighboring atoms ਦੇ ਵਿੱਚ जो distance है उसका half ਹੁੰਦਾ है atomic radius, because obviously radius ਕੀ ਹੁੰਦਾ है, एक circle ਦਾ सिर्फ इन्ना portion ही radius है, this is your radius। so दो जो nearest atoms ने जो neighboring atoms ने, अगर ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जो भी distance है उसका half ही होएगा, that will tell you the exact radius। okay, so simple cubic which की है, you can see कि जो distance है that is 2r and that is equal to a, because side of a square we consider as a, ठीक। और जो distance है वो हो गया r is the, so 2r is equal to a, so r आ गया a by 2। so a है ਤੁਹਾਡਾ a primitive of unit cell है, but r है atom of radius, because ultimately ਤਾਂ ਅਸੀਂ atoms ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਣਾ है। so atom ਦਾ radius obviously matter ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। FCC ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ face centered ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਅਟੈਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ immediate neighbors ਨੇ। okay, so ਹੁਣ ਇਸ केस ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, जो AC है this is R R R R। so अगर AC लाइन देखी जाए, पहली गल ਤਾਂ फेस सेंटर्ड obviously दो नाल ਤਾਂ immediately connected है ही है, ठीक। so ये प्रॉपर ਤੁਹਾਡਾ R R R R 4R बन गया AC। further this AC is equal to AB square plus AC square, because ये right angle triangle है ਅਸੀਂ consider कर रहे। okay, and what is this AB square and BC square? that is the lattice parameter। so वो आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ A, यानी एटम ਦਾ प्रॉपर रेडियस ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ R ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, लेकिन जो ਤੁਸੀਂ लैटिस बनाते हो, जो क्यूबिक लैटिस है या जो भी लैटिस है, वो जो ਤੁਸੀਂ दो पॉइंट्स ਦੇ ਵਿੱਚ जो डिस्टेंस ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ एक क्यूब बना के, सो ए जो तुसी दो पॉइंट्स दे विच जो डिस्टेंस लेंदे हो दैट इज ऑलवेज ए। सो इत्थे वही चीज शो की हुई है। सो दैट इज ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सो अंडर रूट 2a। सो आर बिकम्स अंडर रूट 2a बाय 4, यानी कि 1/2 रूट 2 ए। फिर आ गया BCC। हुण BCC विच की है, अल्टीमेटली ए तुहाडा एक एटम है कॉर्नर ते, एक ए एटम है कॉर्नर ते, और एक ए एटम प्रेजेंट है जो कि तुहाडा बॉडी सेंटर्ड है सेंटर विच। ओके, सो अगेन अगर तुसी सिर्फ इसनू ज्वाइन करो, सो दिस इज आर 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 एंड आर, सो दैट इज 4r एंड दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट a square plus a square plus a square, बिकॉज 3 एटम्स ज्वाइन ने और असी उसका लैटिस पैरामीटर कंसीडर कर रहे हैं। So that gives us root 3a. So r is root 3a by 4. Now packing fraction. So packing fraction means a word तो ही है कि किस तरह atoms pack ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਰਡਬੋਰਡ ਬਾਕਸ ਹੋਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਫੈਰੀਕਲ ਬਾਲਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ ਬਾਲਸ ਨੂੰ ਉਸ ਕਾਰਡਬੋਰਡ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਫਿਟ ਕਰੋਗੇ, ਇਹੀ ਪੈਕਿੰਗ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਲਸ ਨੂੰ ਕਾਰਡਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਵੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ओके, सो वो किद्दां दा वे तुसी चूज करोगे, that is basically your packing fraction. So it is the total fraction of volume occupied by atom in the crystal and is defined as ratio of volume occupied by atom in the unit cell to the volume of unit cell, कि actual च unit cell दा volume कितना है और atom उस unit cell विच कितना volume occupy कर रहे हैं। So that is packing fraction, volume occupied by atoms in unit cell upon volume of unit cell।
सो ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ n ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਐਂਡ r ਇਜ਼ ਦ ਰੇਡੀਅਸ। ਸੋ ਵੋਲਿਊਮ ਆਕਿਊਪਾਈਡ ਬਾय ਐਟਮਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ? ਐਟਮ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਸਫੈਰੀਕਲ। ਸੋ n ਇੰਟੂ 4/3 ਪਾਈ ਆਰ ਕਿਊਬ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਸਫੇਅਰ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਟੋਟਲ ਵੋਲਿਊਮ ਆਕਿਊਪਾਈਡ ਬਾय ਐਟਮਸ n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सैल की होएगा? ए क्यूब, बिकॉज असी डिस्कस कर रहे हैं क्यूबिक सैल। सी ये सारा कुछ असी सिर्फ क्यूबिक लिए ही डिफाइन करांगे, बाकी सारे कॉम्प्लीकेटेड जो स्ट्रक्चर होर सीगे, जो होर एक्स्ट्रा क्रिस्टल सिस्टम असी पढ़े हैं, देर आर टोटल 7। क्यूबिक फर्स्ट है और सिंपलेस्ट है, उसके बाद टेट्रागनल है, देन रोम्बोहेड्रल, ट्राइगनल, मोनोक्लिनिक। उन्होंने बारे असी सारा कुछ डिफाइन नहीं करना, बिकॉज इट गेट्स कॉम्प्लीकेटेड और उसनों समझना मुश्किल है। तो तुसी ये देखो कि जो भी असी पढ़ रहे हैं, पैकिंग फ्रैक्शन, एटॉमिक रेडियस, कोऑर्डिनेशन नंबर, नंबर ऑफ यूनिट सैल, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सैल, ये सारे असी सिर्फ और सिर्फ क्यूबिक लिए ही पढ़ांगे। दैट्स ऑल। ओके, सो हुण वॉल्यूम ऑफ यूनिट सैल भी पता चल गया। सो पैकिंग फ्रैक्शन की हो गया? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सैल, तो हो गया 4 पाई आर क्यूब एन अपॉन 3a क्यूब। हुण सिंपल क्यूबिक विच की है? सानू पता है r इज a/2 एंड नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सैल 1 होंगे। सो हुण जो असी पिछे डिराइव किते वही असी डायरेक्टली यूज करांगे। पुट इट, आंसर आ गया 0.523, क्योंकि एक फ्रैक्शन च आंसर आ रहा है। FCC विच रेडियस भी पता है सानू एंड ये भी पता है कि नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सैल होंगे 4। सबस्टिट्यूटेड, आंसर आ गया 0.74। एंड BCC विच की है? रेडियस भी सानू पता है, इट्स √3a/4 एंड ये भी पता है कि नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सैल होंगे 2। सबस्टिट्यूट द वैल्यू एंड आंसर आ गया 0.68। सो सिंपल क्यूबिक विच आंसर आया 0.523, देन BCC विच आंसर आया 0.68 और FCC विच आया 0.74। यानी कि जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो मैक्सिमम है FCC ਲਈ। यानी कि FCC विच एटम्स ज़्यादा स्पेस कवर कर जाते हैं। जिन्नी स्पेस तुहाडे कोल अवेलेबल है, सब तो ज़्यादा एटम्स FCC विच ही स्पेस कवर करते हैं। एंड ओबवियसली पता भी है सानू कि सब तो ज़्यादा एटम्स अगर उदा भी असी काउंट करिए लैटिस पॉइंट्स, तो सब तो मैक्सिमम होंगे FCC विच, 8 कॉर्नर्स थे 6 फेसिस थे। सो ओबवियसली डेफिनेटली नंबर ऑफ एटम्स भी ज़्यादा होंगे। अगर एटम्स ज़्यादा ने तो स्पेस भी ऑक्यूपाइड ज़्यादा होएगी, स्पेस ऑक्यूपाइड ज़्यादा है तो अल्टीमेटली पैकिंग फ्रैक्शन विल बी मोर। देन देयर इज दिस डेंसिटी ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल। सो डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। So let m be the molecular mass, capital M be the molecular mass of crystal, small n be the number of molecules per unit cell and n be the Avogadro number। तो यानी कि mass of n molecules तो हो गया कैपिटल M। जब कोई भी molecular mass होता है किसी भी चीज़ का, कोई भी क्रिस्टल का या कोई भी सॉलिड का, उसका molecular mass होता है mass of all the molecules which are present in it। और वो molecules कितने होते हैं? वो एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होते हैं। क्या होता है एवोगैड्रो नंबर? 6.023 इंटू 10⁻23। अब यहाँ पे एटम्स लिख दो या मॉलिक्यूल्स लिख लो, इट डिपेंड्स। अगर एलिमेंट की बात हो रही है तब होते हैं एटम्स 6.023 इंटू 10⁻23। अगर कंपाउंड की बात हो रही है तब हम कहते हैं 6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। सो कंपाउंड हो या सॉलिड हो या क्रिस्टल हो, सब में मॉलिक्यूल्स की बात होती है। ठीक है, तो n मॉलिक्यूल यानी एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द क्रिस्टल। तो मास ऑफ स्मॉल n कितना हो गया? सो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल हो गया कैपिटल M बाय n, और मास ऑफ स्मॉल n मॉलिक्यूल्स कितना हो गया? कैपिटल M बाय n इंटू n। नाउ n small n, this is the number of molecules per unit cell, therefore the quantity represent the mass of unit cell। वो हो गया आपका रो a क्यूब, और रो क्या है? डेंसिटी। a है आपकी एज। सो दैट मीन्स ये जो मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स है ये बेसिकली बता रहा है आपका मास ऑफ यूनिट सेल। एक यूनिट सेल का ही मास है
ठीक है, उसी में ही इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे. सो दैट मीन्स रो ए क्यूब इज एम एन अपॉन कैपिटल एन. सो रो आ गया एम एन अपॉन एन ए क्यूब. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी. और अब आपको ये स्मॉल एन, कैपिटल एम एंड कैपिटल एन, इनके बारे में पता होना चाहिए. डोंट कंफ्यूज इट. ओके. सो पैकिंग फ्रैक्शन बेसिकली क्या है कि आप कैसे पैक कर रहे हो एटम्स को. सो सपोज यू हैव अ बैग, ओके, एंड आपने उसमें बॉल्स फिल करनी है. तो वो बॉल्स फिल करने के भी अलग अलग मेथड हैं. या तो आप इस तरह प्लेस करोगे कि आपने एक पूरे बॉल्स जो हैं वो प्लेस की, फिर सेम बॉल के ऊपर ही आपने नेक्स्ट प्लेस कर दी, बिल्कुल सिमेट्रिकल पैटर्न में. तो अब इसमें अगर आप देखो तो ये एक तरह से आपका क्यूबिक अरेंजमेंट है. तो क्यूबिक लैटिस में इस तरह से होता है. ठीक है. लेकिन पैकिंग हम इस तरह भी कर सकते हैं कि स्पेस ना रहे. या तो आपने बिल्कुल इस तरह से पैकिंग करनी है कि सेम ही हर एटम के ऊपर ही नेक्स्ट आ रहा है. साथ वाला एटम है तो उसके ऊपर ही एकदम इमीडिएट ऊपर ही नेक्स्ट एटम है. या फिर क्या कर सकते हैं कि आपने एक लेयर तो एटम्स की रख दी. अब आप क्या करोगे, वो जो उसके बीच में स्पेस होता है, आप उस स्पेस को फिल करने की कोशिश करते हो. एंड यू विल प्लेस योर एटम इन सच अ वे कि आप ज़्यादा स्पेस कवर कर सको. या आपने प्रैक्टिकली बहुत बार नोटिस किया होगा कि अगर हम इस तरह करें तो लेस बॉल्स फिट होएंगी बॉक्स में, और अगर हम इस तरह करें तो मोर बॉल्स फिट होएंगी. ठीक है. क्यों? क्योंकि हम जो जो भी हमारे पास ये जो वैकेंट स्पेसेस हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास ये हर अरेंजमेंट में ये इतनी इतनी वैकेंट स्पेस बच रही है. तो ये एक तरह से वेस्ट है ये सारी स्पेसेस. ओके. सो वी ट्राई टू यूज एज मच स्पेस एज वी कैन. तो हम क्या करते हैं, वो हम गैप्स में नेक्स्ट को प्लेस करते हैं. तो इसके इमीडिएट ऊपर ना प्लेस करके हमने यहाँ पे प्लेस किया, इसके यहाँ पे प्लेस किया, एंड देन वी मेक द होल अरेंजमेंट. तो उससे क्या है कि डेफिनेटली वी विल हैव मोर बॉल्स इंक्लूडेड. ओके. सो यही चीज सिंपल क्यूबिक में है, या बॉडी सेंटर्ड में है, या फेस सेंटर्ड में. सिंपल क्यूबिक में सिर्फ कॉर्नर्स पे एटम्स हैं, कोई फेसेस में नहीं है. तो ये जो हम एक्स्ट्रा प्लेस कर रहे हैं, जो इनके इस तरह गैप्स को जो फिल करने के लिए हम प्लेस कर रहे हैं, ये एक तरह से फेस सेंटर्ड समझ लो या बॉडी सेंटर्ड समझ लो. कि जो भी एक्स्ट्रा आपके पास स्पेस वेकेंट बच रही थी, वहां भी एटम आ गया, वहां भी वो प्लेस हो गया. ठीक. तो एटम्स ने ज्यादा स्पेस कवर कर ली जो एक यूनिट सेल में अवेलेबल थी. सो दे आर मोर टाइटली पैक्ड, यू कैन से. तो हम पैकिंग भी पढ़ते होते हैं, टाइप ऑफ पैकिंग. जैसे ये स्क्वायर पैकिंग है, ठीक है. दिस इज योर हेक्सागोनल पैकिंग. तो ऑब्वियसली मैक्सिमम स्पेस कहां पर है, स्क्वायर पैकिंग में एम्प्टी स्पेसेस ज्यादा है, हेक्सागोनल में वो चीज कम है. ठीक. तो किस तरह से आप पैक कर रहे हो, दैट ऑल्सो मैटर. और फिर कितने एटम्स आ रहे हैं, क्या सिर्फ कॉर्नर्स पे हैं, तब तो वी विल नॉट बी एबल टू एक्वायर मच स्पेस. बट अगर फेस सेंटर्ड आ जाए या बॉडी सेंटर्ड आ जाए, सो डेफिनेटली देयर विल बी मोर एटम्स in the same space and packing fraction will be more. कितने ज़्यादा पैक हो रहे हैं उसी पर्टिकुलर स्पेस में. सो दैट इज पैकिंग फ्रैक्शन. ओके. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. अब हमारे पास बस एक और टॉपिक रह गया, दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है. एंड विद देन वी विल फिनिश विद दिस फर्स्ट चैप्टर. ओके. सो दैट्स ऑल. थैंक यू.